حمیدہ، کتنے برس ہو گئے ہمیں یہ دن جھیلتے ہوئے۔ ہر صبح کی طرح شام آتی ہے اور ہر شام کے بعد وہی بے بسی۔ یہ دن تو ہمیں کب کا ہار چکے غفور، اب تو بس بیٹی کی عمر ہی ہے جو جیتے جا رہی ہے۔ کل جو رشتہ دیکھنے آئے تھے ان کی نظریں زہرا کے چہرے پر نہیں ہماری دیواروں پر تھیں۔ کہنے لگے عمر زیادہ ہے، اور ان کی بیٹی 16 سال کی عمر میں زیور میں لدی ہوئی، دنیا کو نصیب سے نہیں جہیز سے پیار ہے۔ زہرا کچھ بولتی نہیں اب، وہ ہنسی جو کبھی گلی میں گونجتی تھی اب کہیں چھپ گئی ہے۔ ایک ماں کا دل جانتا ہے غفور، اس کی خاموشی مجھ سے چیخ چیخ کے باتیں کرتی ہے۔ کاش میں کچھ بن جاتا، کوئی ہنر، کوئی کاروبار، تو شاید آج اس کی مانگ میں سندور ہوتا۔ تم نے اسے رزقن حلال دیا، عزت دی، صبر سکھایا، یہ کم ہے کیا غفور؟ میں ہر رات جاگتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ کوئی اس کے سچے دل کو پہچان لے، مگر دنیا کو سچ کم سونا زیادہ دکھتا ہے۔ میں نے چپ چاپ سب سہا، غربت، محرومی، مگر بیٹی کا بڑھتا ہوا سناٹا مجھے توڑ رہا ہے۔ تم نے کبھی شکایت نہیں کی حمیدہ، میں جانتا ہوں، لیکن میں خود سے شرمندہ ہوں۔ آج زہرا کے ہاتھ میں چوڑیاں ہونی چاہیے تھیں، وہ مسکرا کر مہمانوں کو چائے دیتی، ماں کے سینے سے لگ کر خوشی کے آنسو بہاتی۔ اب ہر دن ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر کچھ اور مر گیا ہو۔ ہماری عزت ہی ہمارا زیور ہے، میں اپنی چاولیاں بیچ دوں تو شاید رشتہ ہو جائے، مگر ماں کی مانگ خالی ہو جائے گی۔ اگر میں کل نہ رہا تو تم زہرا کو اکیلی کیسے سنبھالو گی حمیدہ؟ ایسا مت کہو، تم ہی تو ہو جس کے سہارے ہم کھڑے ہیں۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس کے ماتھے پر سکھ کی بندیا ہو اور ہماری آنکھوں میں سکون۔ میں نے رب سے صرف ایک دعا مانگی ہے کہ زہرا کے نصیب کا دروازہ کھول دے، چاہے وہ دروازہ ہمارے نصیب سے بند ہو جائے۔ اللہ، بس اب ایک بیٹی کی عزت کا سوال ہے، ہماری زندگی کا حاصل۔ زہرا بیٹی، الفاٹے جا، سورج سروں پر آ گیا ہے، تو کب تک اندھیروں سے لپٹی رہے گی؟ امی، روشنی سے ڈر لگنے لگا ہے، ہر نیا دن بس پرانے زخم دہراتا ہے۔ تو زخموں سے بھاگے گی تو مرہم کیسے آئے گا؟ کچھ بول، دل کا بوجھ باندھ۔ دل کا بوجھ بانٹا جا سکتا ہے امی، آبس اندر ہی اندر دفن ہوتا ہے۔ میں تیری ماں ہوں، کچھ تو کہہ، چپ رہنے سے نصیب تھمتے نہیں اور دکھ دبنے سے نہیں جاتے۔ امی، کب تک بولوں؟ جن کے سامنے چپ ہوں وہی سب سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو پھر ماں سے کیوں چپ ہے؟ میں تو ہر درد سننے کو بیٹھی ہوں۔ کیونکہ ماں کا دل دکھانے سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تاو میرے لیے قربانی بنے، بس چاہا کہ تاو اپنے لیے جیے۔ میں اپنے لیے کیسے جیوں امی، جب ہر خواب سہاگ کے رنگ میں ڈوبا ہو؟ تو خواب کیوں نہ دیکھے؟ رب نے تیرا بھی مقدر لکھا ہے۔ لیکن لگتا ہے میرے نصیب والے ورق پر کوئی سیاہی ہی نہ بچی ہو۔ میں روز اس رب سے لڑتی ہوں تیرے حق کے لیے، وہ خاموش ہے پر اندھا نہیں۔ خاموش رب اور خاموش بیٹی، دونوں کا درد کون سمجھتا ہے امی؟ اگر آج تاو بولی ہے تو سمجھ کے کچھ بدلنے والا ہے۔ بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے شرمندہ نہ ہوں، بس یہ کافی ہے۔ شرمندگی تو میری فخر ہے زہرا، شرمندگی تو ان کی ہے جو تجھے دیکھ نہیں پائے۔ کاش وہ فخر کسی کے آنگن کی رونق بن جائے امی، کسی کے نام کی دعا بن کے رہے گی۔ رب کی بارگاہ میں دیر ہو سکتی ہے، انکار نہیں۔ تو پھر امی، آج سے میں بھی دعا مانگوں گی، شاید آسمان میری آواز پہ رحم کھا لے۔ السلام علیکم منصور، تاو یہاں کتنے دنوں بعد نظر آیا ہے۔ وعلیکم السلام بھائی، تیرا چہرہ ہی سب کچھ بتا رہا ہے۔ بیٹھ کچھ دیر دل ہلکا کر۔ بس کیا بتاؤں، دل بڑا بھرا ہوا ہے آج، کسی سے کہنے کو کچھ نہیں۔ یہ وقت ہے غفور، گزر جائے گا، بس تاو ہمت نہ ہار۔ بہت دن ہو گئے منصور، زہرا کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور کوئی رشتہ دار رشتہ نظر نہیں آتا۔ تیری زہرا کی قسمت کا مالک بھی وہی رب ہے جو تیرے دل میں ہے۔
कभी कभी लगता है शायद मेरे नसीब ही में बेटी की खुशी लिखी नहीं गई। मैं जानता हूं हालात मुश्किल हैं, पर ताव कमजोर नहीं, ताव बाप है। लोग पूछते हैं, बातें बनाते हैं, और मैं खामोश रहता हूं, क्योंकि चीखने का भी कोई फायदा नहीं। बाप का दिल अगर हार गया तो बेटी का यकीन भी डोल जाएगा। हमीदा दिन रात दुआ करती है और मैं उसके आंसू छप के देखता हूं। हमीदा की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, मैंने सुना है ऊपर वाले के हां देर है अंधेर नहीं। मैं सोचता हूं मंसूर, कहीं मैं खुद ही कमजोर तो नहीं हो गया। ताव चाहे तो कल शहर में मेरे साथ चल, मैं कुछ जानने वालों से बात करवा देता हूं। दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ दूं, बस ज़ोहरा के लिए कुछ कर जाऊं। ये वक्त आजमाइश का है और ताव इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होगा। पर यह गुर्बत, ये मजबूरी, जैसे मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी हों। ताव जिस सच्चाई से जीता है, रब तुझे शर्मिंदा नहीं करेगा। ताव ने इतना अच्छा वक्त देखा है, तेरे जैसे दोस्त की बात सुन के शायद दिल हल्का हो जाए। याद रख, किसी का हाल रब जब बदलता है ना, तो दुनिया भी हैरान रह जाती है। ताव ने देखा है ना ज़ोहरा को, दिन ब दिन आदास सी होती जा रही है। बिल्कुल, मैंने भी देखा है ज़ोहरा को, सहन में बैठे आसमान तकती रहती है। क्या करे बेचारी, माँ बाप के हालात ऐसे हों तो लड़की का जी मर ही जाता है। आजकल की लड़कियां इतनी खामोश कब रहती हैं? कुछ तो जरूर है। अब उम्र भी कौन सी कम रह गई है इसकी। गांव की लड़कियां तो 20 में नानी बनने के ख्वाब देखती हैं। हमीदा को चाहिए था कि वक्त पे बेटी के लिए फैसला कर लेती, अब तो रिश्ते भी पीछे हट गए होंगे। हमीदा को मैंने कई बार समझाया कि रिश्ता आया करे तो हाँ कर लिया करो, पर वो तो चुप की मूरत बनी रहती है। मैंने एक बार अपनी भाभी को ज़ोहरा का रिश्ता बताया था, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा हमें कोई बहू चाहिए, बोझ नहीं। अब इतने साल बीत गए, लोग तो पूछना भी छोड़ गए कि शादी कब है। और ये बात मैंने हमीदा को बताई भी नहीं, वरना इसका दिल और टूट जाता। कल ही मेरी मुमानी कह रही थी, क्या बात है, इस घर में कुछ छुपा रहे हैं क्या। गफूर का हाल भी अजीब है, न खुद कुछ करता है, न बेटी के लिए कुछ बंदोबस्त। और गफूर, वो तो रोज मुंह लटकाए घर से निकलता है जैसे दुनिया का बोझ उसी पे हो। सुना है 2 दिन से इसने काम पे जाना छोड़ दिया है। आदमी है या साया? वैसे भी इतनी गुर्बत में कौन बेटी ब्याहता है। सच पूछो तो दिल दुखता है, पर क्या करें, जुबान रोकने का वक्त भी नहीं रहा। यही हाल रहा तो लोग ज़ोहरा को नजर भर के भी नहीं देखेंगे। अलिफादेर रफीक की बेटी देख, इसकी तो 3री मेहंदी हो गई है, ये तो एक पे ही फंस गए। और फिर हम लोगों पे इल्जाम लगेगा कि हमने बातें की। अरे बातें तो खुद बोलती हैं। मुझे तो डर है कि कहीं ज़ोहरा को घर बैठे बैठे कोई रोग ना लग जाए। अल्लाह रहम करे, पर कोई कदम तो उठाना पड़ेगा उन्हें। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उम्मी, एक बात पूछो। सच में? बिल्कुल सच। पूछ बेटी, दिल में कुछ हो तो निकाल देना बेहतर होता है। क्या मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक बोझ हूं? ज़ोहरा, ये कैसा सवाल है? ताव हमारी सांस है बेटी। सांस हो, पर सांस जो रुक गई हो बरसों से। हर नज़र में रहम, हर बात में टाल मटोल। ये सब दुनिया की बातें हैं, माँ की नहीं। उम्मीद दुनिया ही तो रोज सुनाती है, और अब चुप रहती है। मैं चुप नहीं बेटी, बस मेरी आवाज इतनी ऊंची नहीं जितनी उनकी नजरों की। मेरी उम्र गुजर गई खामोशी में उम्मी। आपने कब सुना कि मैं हंसी हूं खिल के? मैंने हर रोज दुआ की है तेरी खुशी के लिए, बस हाथ खाली रह गए। क्या सिर्फ दुआ काफी है? क्या किस्मत का ताला बगैर चाबी के खिल जाता है? चाबी तो गफूर के हाथ में है, पर उसके हाथ खाली हैं। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे बैठे गुजार दूं, किसी की बीवी बनने के ख्वाब बस ख्वाब ही रहे। मेरा दिल भी खून के आंसू रोता है, पर जमाने की दीवार बहुत मोटी है। दीवार के पीछे से सब सुनाई देता है उम्मी। नसरीन खाला, शफकत चची, सब कुछ। मैं जानती हूँ, पर कुछ लफ्ज मेरी जुबान पर आने से डरते हैं। पर मैं अब डर नहीं सकती उम्मी। मैं जीना चाहती हूँ।
किसी की नज़र में ख्वाब नहीं हकीकत बन के। तो मेरे दिल का टुकड़ा है ज़ोहरा, मैं तेरी हंसी के लिए अपनी खामोशी तोड़ूंगी। तो फिर वदा करें, कल अब्बा से बात करेंगी, खिल के डर के बगैर। हाँ बेटी, अब ना तो ताव अकेली रहेगी ना मैं चुप। मुआफ कीजिएगा, आपका नाम ज़ारा है? जी, लेकिन अब कौन है? मैं पहली बार किसी को देखकर ये महसूस कर रहा हूं कि मेरी तलाश खत्म हो गई। गांव की लड़कियों से क्या तलाश पूरी होती है? कभी कभी सादगी में वो चीज़ होती है जो शहर के शोर में खो जाती है। हम तो बस बाजार के कामों में लगे रहते हैं, ख्वाब देखने की फुर्सत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें देखकर ख्वाबों पर यकीन ले आया हूं। ख्वाबों में रहने वालों को हकीकत बहुत चुभती है। तो फिर मुझे हकीकत बना लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। ये गांव है, यहाँ हर नज़र सवाल करती है। और मैं हर सवाल का जवाब देने आया हूं, बस तुम साथ दो। साथ देने के लिए एतमाद दरकार होता है, जो अजनबियों पर नहीं होता। तुम अजनबी नहीं लगती, शायद कोई पुराना रिश्ता हो। उन बातों से दिल बहल जाता है, पर जिंदगी नहीं बुनती। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा। वादे करने वाले तो कई आते हैं, निभाने वाले कम होते हैं। मैं तुम्हें वक्त दे सकता हूं, फैसला तुम्हारा होगा। शायद वक्त ही बेहतर जवाब दे, इंसान नहीं। तब तक मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा, खामोशी से। बस खामोश रहना सीख लो। गांव की लड़कियां बहुत कुछ चुपचाप समझ लेती है। खाला अस्सलाम अलैकुम, मैं एक जरूरी बात करने आया हूं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत तो है ना? ऐसे अचानक? मैं ज़ारा को पसंद करता हूं और उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। ज़ारा? तुम ज़ारा को कब से जानते हो बेटा? मैं काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन आज हिम्मत करके आपके सामने आ गया हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह की बात करने आओगे। ज़ारा निहायत बाहिया, बाइखलाक और सादा तबीयत की लड़की है। तुम्हारे अल्फाज सुनकर दिल को सुकून मिला। अल्लाह नियतें देखता है। मैं चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। बेटा, हम तो हमेशा से चाहते थे कि ज़ारा को कोई इज्जत देने वाला मिले। मैंने शहर में अपनी छोटी सी दुनिया बसाई है और अब इसे मुकम्मल करने के लिए ज़ारा को शरीक हयात बनाना चाहता हूं। लेकिन हमारी गुर्बत ने हमेशा रिश्तों को रोके रखा। मैं इसे हर वो खुशी देना चाहता हूं जिसकी वो हकदार है। तुम्हारे इरादे साफ लगते हैं, तुम्हारे लहजे में सच्चाई है। खाला, मैं वादा करता हूं कि ज़ारा का ख्वाब कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी माँ से भी जरूर मिलना चाहूंगी। मैं जानता हूं कि आपको अपनी बेटी के लिए बहुत से ख्वाब होंगे। हम कुछ भी नहीं मांगते, बस इज्जत और सुकून चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। आपकी दुआएं और ज़ारा की खुशी मेरी जिंदगी की कामयाबी होगी। बेटियों की माएँ चाहती हैं कि उनके नसीब अच्छे हों। तुमने उम्मीद जगा दी है। मुझे अब से इजाज़त चाहिए ज़ारा को अपने घर की इज्जत बनाने की। मैंने ज़ारा को हमेशा हालात से लड़ते देखा है, वो बहुत कुछ सह चुकी है। मैं अपनी माँ से भी बात कर चुका हूँ, वो भी ज़ारा को दिल से अपनाएंगी। अगर तुमने ज़ारा को दिल से अपनाया है तो हम क्यों रोकें? मेरा इरादा नेक है और दिल साफ है, मैं बस ज़ारा को खुश देखना चाहता हूँ। बेटा, अल्लाह तुम्हारे इरादे में बरकत दे, ज़ारा का नसीब संवार दे। मैं चाहता हूँ ज़ारा अब इन महरूमियों से निकलकर सुकून से जिए। मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है, इंशाअल्लाह सब खैर होगी। जो भी फैसला आपका होगा मैं इसे इज्जत दूंगा, मगर दुआ है कि आप मुझे ज़ारा के काबिल समझें। ज़ारा की खुशी ही मेरी खुशी है, अगर वो राजी है तो मैं भी राजी हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज दिल को एक अजब सुकून मिला है। हाँ, अल्लाह तेरा करम है, वरना कब सोचा था कि ज़ारा के नसीब में ऐसा अच्छा रिश्ता आएगा। मैं तो अक्सर रातों को जाग कर यही दुआ करता था कि रब हमारी बेटी को इज्जत दे, और आज वो कबूल हो गई। मेरी माँ कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। देख लो गफ्वर, आज हमारी बेटी की किस्मत जाग उठी है। ज़ारा जैसी मासूम और सादा दिल बच्ची को फरहान जैसे शरीफ लड़के का मलना, ये तो नसीब वालों को ही मिलता है। सच कह रहे हो, बेटी का रिश्ता ऐसा हो कि माँ बाप को भी सुकून मिले, और हमें तो सुकून ही नहीं फख्र भी महसूस हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई शहरी लड़का इतनी मोहब्बत से हमारे घर आएगा, इज्जत से बात करेगा। अल्लाह ने हमारे सब्र का फल दिया है गफ्वर। हमारी गुर्बत देखकर भी इसने ज़ारा को इज्जत दी। अब बस एक दुआ है कि अल्लाह ये रिश्ता सलामत रखे
اور زارا کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آمین آمین رب العالمین۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ بیٹی خوش گھر خوش دل مطمئن۔ میں نے تو دل میں 100 بار شکر کیا آج جب فرحان نے کہا کہ وہ زارا کو عزت دے گا، سہولتیں دے گا۔ میرا دل رو رہا تھا، خوشی کے آنسو روکنا مشکل ہو گئے تھے۔ بیٹی کی خوشی ماں کو کہاں چھپتی ہے؟ پہلی بار لگا کہ شاید ہم اتنے بھی بے نصیب نہیں، اللہ نے ہمیں بھی چانا ہے خوشی کے لیے۔ ہم نے تو زارا کو ہمیشہ کم میں گزارا سکھایا، اب اللہ نے اسے بڑھ کے عطا کر دیا۔ زارا کی خاموش دعائیں بھی رنگ لے آئیں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، بس وقت لگتا ہے۔ غفور، اب میں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگوں گی کہ زارا کے گھر میں بھی وہی سکون ہو جو آج ہمارے دل میں ہے۔ اس کے چہرے پر جو روشنی ہے نہ وہ روشنی ہر دن قائم رہے، یہی میری تمنا ہے۔ اللہ کرے زارا ہمیشہ خوش رہے، کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، صرف خوشی کے آنسو۔ اب میں زارا سے نظریں نہیں چرا رہا، بلکہ فخر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہے میری بیٹی۔ اور میں بھی غفور، اللہ کی بندی، جو اب رحمت بن کر ہمارے دل کو خوشی سے بھر گئی ہے۔